Hello and welcome everyone. This is the new lecture in our Indian geography where we will talk about Indian physical settings and drainage system for our Atulya series, basically which will look forward for swift revision for prelims 2022. So start करते हैं अपने discussion with Indian physical setting and drainage system. So basically these are the two maps. One is talking about the length and breadth of India, another one is talking about the physiographic divisions of India. So these are the physical divisions. In the first map you can you can see the extremities of Indian mainland where they are located and different physical dimension. This is the length over which India is spread, breadth of India, Indian mean time. It is the standard meridian of India. So India has its expansion. The mainland part of India has its expansion from 30 degrees and 6 minutes north to 8 degrees and 4 minutes north. It is above the equator, or that is to say north of equator. अगर इंडिया की बात करते हैं हम लैटिट्यूडनल एक्सपेंस की, so it is 68 degrees 7 minutes ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 degrees 25 minutes ईस्ट longitude तक इंडिया की एक्सपेंस है. दिस इज द जनरल आइडिया. दीज आर द कंट्रीज विच आर सराउंडिंग इंडिया, राइट. सो दीज आर द बेसिक इंडियन पैरामीटर लोकेशन कि इंडिया स्पेस में कहाँ पर सेटल्ड है. दिस इज द मैप विच कैन गिव यू आइडिया, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है. ये क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट हो सकता है विच इज वेरी मच बेसिक एंड फैक्चुअल, जो आपको लगे आप कंसिडर ना कर पाओ और ध्यान ना रहे प्रिपेयर करते हुए. दैट इज वाई आई हैव गिवन यू दिस मैप एंड आई वुड आस्क यू, जो आप from your basic books, if you refer to such portion and your handouts of the class, आप इसको भी refer करें, then you can relate things better. Now coming to the physical divisions of India. In case of physical divisions, we have got first Trans-Himalayan range, then Western Himalayan, and then Eastern Himalayan. We have got desert range here in the western part of India. Then we have got semi-arid belt which is semi-circular in nature. तो ये कई स्टेट को कवर करती है, पंजाब के कुछ पार्ट को, हरियाणा के पार्ट को, राजस्थान के पार्ट को, गुजरात के पार्ट को, इन सम पार्ट ऑफ एमपी. देन वी हैव गॉट गैंजेटिक प्लेन यानी गंगा प्लेन. वी हैव गॉट नॉर्थ ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र प्लेन एंड देन पूर्वांचल रेंज. यहाँ पर आपको हिली टेरेन मिलेगा. वी हैव गॉट दी सेंट्रल हाईलैंड जिसमें आपको प्लेटू लोकेशंस मिलेंगी, छोटा नागपुर प्लेटू, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड रीजन, मेवाड़ प्लेटू एटसेट्रा. देन दिस इज द डेक्कन प्लेटू रीजन जहां पर आपको बसाल्टिक प्लेटू मिलेगा. यू कैन ऑल्सो हैव द वेस्टर्न घाट लोकेशन, द वेस्टर्न घाट लोकेशन, देन ईस्टर्न घाट लोकेशन. दीज आर द लोकेशंस. देन यू हैव गॉट कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया की आइलैंड टेरिटरीज, लक्षद्वीप है आपके अरेबियन सी में, अंडमान एंड निकोबार है आपके बे ऑफ बंगाल रीजन में. सो दीज आर दी physical setting or physical or locations of India. So here we have got both mountain, plain भी दो तरीके के. one is inland plains, तो normally which are northern plains in the north, northern plain, and others are coastal plains. These are the major plain features. Then we have got plateaus also. So plateaus are also there in case of India. Now let's try to see the major physical settings or physical features और उनके बारे में पढ़ते हैं. To start with, we have got the mountain range starting from the Himalayan. North of Himalaya or north of Indian mountain range, there lies the Kunlun Shan, there lies the Hindu Kush, और यहाँ पर Palm and Knot is the अप्रेस प्लेटू जहां से बाकी सारे ये माउंटेन सिस्टम एमर्ज कर रहे हैं. इंडिया में वी हैव गॉट हिमालयन रेंजेस, और हिमालयन रेंजेस में वी नो दीज आर डिवाइडेड इनटू 3. फर्स्ट इज द ग्रेटर हिमालय, देन इज द मिडिल हिमालय और वी कैन से हिमाचल हिमालय, फिर उसके नीचे है शिवालिक रेंज. सबसे ज्यादा हाइट जिनकी है दैट इज द ग्रेटर हिमालय, फिर उसके कम हाइट है आपकी लेसर हिमालयाज की, और शिवालिक की सबसे कम हाइट है.
जब बात करते हैं बियॉन्ड हिमालयाज विद इन इंडिया, माउंटेन रेंज एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप हिमालय को पार करके नॉर्थ जाओगे, देयर आर माउंटेन रेंजेस, दे आर नोन एज ट्रांस हिमालयन रेंजेस। What is included in trans Himalayan ranges? Let me just highlight that. In the northmost is the Karakoram, then comes the Ladakh, then Zanskar. These are the three major ranges here: Karakoram, Ladakh, Zanskar. These are the range. If you see this map, you can find the different names here. One is the Kailash range, another one is the Mansarovar Lake region. Mount Everest is here. Then you get the Kanchenjunga in the northeastern part of India. Then another location is Namcha Barwa. These are the peak location. At the same time, you will find Garo, Khasi, Jaintia. These are the mountain range in the northeast, specifically in the Shillong region. Then Naga Hills, Patkaibam, Mizo Hills. These are also location you can find here. So basically on this map, you can find different ranges. Apart from that, in Pakistan, there is a range, Suleiman range. So what is happening? All the ranges are merging towards this point. And let me tell you, when we talk about Indian Himalayas, so Indian Himalayas are the product of merging of Indian subcontinent plate with the Eurasian plate. And it is Indian plate. तो पहले जो रेंज बनी थी इनके कन्वर्जेंस के टाइम पर, जब इंडियन प्लेट का ओशनिक पार्ट मर्ज कर रहा था यूरेशियन प्लेट के कॉन्टिनेंटल पार्ट से, और वहां पर जो रेंज थी जिसमें वॉल्केनिक आपको वॉल्केनिक रॉक्स भी मिलते हैं, यानी कि वॉल्केनिक एक्टिविटी भी थी, वो है आपकी ट्रांस हिमालयन रेंज। तो ट्रांस हिमालयन रेंज में आपको जो फर्स्ट पार्ट बना दैट वाज द ट्रांस हिमालयन, THR, आई एम राइटिंग ट्रांस हिमालयन रेंज। यहाँ पर आपको वॉल्केनिक लैंडफॉर्म भी मिलते हैं। Beyond which lies the Tibetan Plateau. तिब्बतन प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू एक इंटरमाउंटेन प्लेटू है जिसके नॉर्थ में कुनलून शान है और जिसके साउथ में आपकी हिमालयन रेंजेस है। फिर इंडियन कॉन्टिनेंट का जब ओशनिक पार्ट कंज्यूम हो गया, नाउ इंडियन प्लेट का ओशनिक पार्ट कंज्यूम हो गया, तो इंडियन प्लेट और इंडियन प्लेट एक दूसरे के साथ कोलाइड करते, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, एंड देन क्रस्टल फोल्डिंग इज स्टिल हैपनिंग। क्रस्टल फोल्डिंग मतलब फिर से फोल्ड माउंटेन बनने शुरू हो जाते हैं। व्हाट आर दोज फोल्ड माउंटेन्स? दे आर हिमालयन रेंजेस, ग्रेट हिमालयाज, फिर हिमाचल हिमालयाज, एंड देन शिवालिक रेंज। ये आपका ऑर्डर है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जब आप नॉर्थ मूव करते हैं, ट्रांस हिमालयाज, देन ग्रेट हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज एंड शिवालिक्स। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स, इंडियन प्लेट एज वेल एज द अदर प्लेट्स। So this is the figure about Himalayas in India. We will try to see. जब बात करते हैं ग्रेट हिमालयाज की, इनर हिमालयाज या इनको हिमाद्री भी बोलते हैं, दैट बिकॉज दे आर वेरी हाई, तो यहाँ पे बर्फ की हिम की लेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनकी एवरेज हाइट 600 मीटर्स के आसपास है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पीक लाइक माउंट एवरेस्ट नेपाल में है 8,848 मीटर्स, सिमिलरली कंचनजंगा, देन मकालू in Nepal, then Dhaulagiri is also in Nepal, Nanga Parbat is in India, then Annapurna Nepal में है, Nanda Devi is in India, Namcha Barwa is also in India. When I was talking about कि हिमाचल when I was talking कि Indian plate Eurasian plate से के साथ में मिल रही थी, so what was happening? Indian plate पहले आके यहाँ पर हायर माउंटेन्स ये पहले इस डायरेक्शन में कोलाइड करती है, एंड देन दिस प्लेट मूव्स इन दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर इसका यहाँ पर कॉन्टैक्ट जनरेट होता है इंडियन प्लेट का। सो व्हाट इज हैपनिंग, जब आप इसे देखेंगे, इट इज ड्यू टू दिस प्रोसेस कि पहले प्लेट आई, वेस्टर्न साइड से कॉन्टैक्ट जनरेट होता है, देन ईस्टर्न साइड में एंटी क्लॉकवाइज कॉन्टैक्ट जनरेट होता है। इस वजह से यू विल फाइंड यहाँ पे माउंटेन रेंज जो बनी है वो कुछ इस तरीके से है। हेयर इट इज सुलेमान, देन यहाँ पर आपकी पामिर नॉट है जिससे आपके डिफरेंट माउंटेन्स निकल रहे हैं, कुनलून शान एटसेट्रा। फिर इंडिया की ट्रांस हिमालय और हिमालयन रेंज, एंड देन यहाँ पर आपके पूर्वांचल हिल्स है। ये जो इस टाइप का अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं सिंटेक्शियल बैंड। व्हाट इज दिस? दिस इज
सिंटेक्सल बेंट, जो एक हेयर पिन लाइक बेंट यहाँ पर क्रिएट हो गया दोनों साइड में, इसकी वजह से क्या होता है, दिस दिस बेंट डिसाइड्स कि जो ड्रेनेज पैटर्न है या जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, सब कॉन्टिनेंट का, वो किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर कोई रिवर यहाँ से फ्लो हुई है तो वो इट विल एंटर हेयर, यहाँ से फ्लो है अगर यहाँ पर आती है, यहाँ से फ्लो होती है, इट विल फॉलो दिस पाथ। इसके बियॉन्ड जाने के लिए रिवर को, यानी कि इस माउंटेन का जो ये सिस्टम है, ट्रैप है, इससे बाहर निकलने के लिए रिवर को हैज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। तो दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो हिमालय में ओरिजिनेट होती है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही रह जाती हैं। लुक, दिस इज द syntextual band which I am talking about. If you can relate it, syntextual band, ये पामेड नॉट है, यहाँ पर नामचा पॉइंट है, दिस इज दी that band which I am referring to. So largely these are asymmetric in nature, they are ग्रेनाइट कॉम्पोजिशन ज्यादा है यहाँ पर। ग्रेनाइट का मतलब वॉल्केनिक रॉक्स आर प्रेजेंट इन ग्रेटर हिमालयाज। देन कम्स लेसर हिमालयाज और हिमाचल हिमालयाज। तो ये हिमाचल के साइड में पड़ते हैं, ग्रेटर हिमालयाज के साउथ सदर्न पार्ट में। ऑल्टीट्यूड इनका 3700 टू 4700 है, एवरेज विड्थ है 50 किलोमीटर्स इनकी। द फेमस रेंज इंक्लूड पीर पंजाल जो कि लॉन्गेस्ट है इनकी, धौलाधार रेंज एंड महाभारत रेंज। तो अगर आपके पास ये सवाल आता है वेयर आर दीज रेंजेस लोकेटेड, इन दी लेसर हिमालयन रीजन, तो कश्मीर में कुल्लू में, कांगड़ा वैली एटसेट्रा, हिमाचल देयर आर सेवरल हिल स्टेशंस इन दिस। फर्दर हिमाचल हिमालयाज आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक भी एक्सटेंड होते दिख जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी एक्सटेंड होते दिख जाएंगे टिल अरुणाचल प्रदेश। मूविंग अहेड, शिवालिक्स की अगर बात करें यानी कि आउटर हिमालय की, दीज आर सेडिमेंट्री बेसिकली और लूज सेडिमेंट के बने हुए हैं। हिमाचल हिमालय थोड़े पहले बन चुके हैं और इनकी हाइट ज्यादा है, इनमें ज्यादा रॉक्स स्टेबल है। अगर शिवालिक्स की बात करें, बेसिकली दीज आर सेडिमेंट्री इन नेचर, इनकी विड्थ इज ओनली 10 to 15 किलोमीटर्स और ऑल्टीट्यूड इज अराउंड 900 एंड अप टू 100 मीटर्स। सो कहीं पर 100 मीटर्स है, कहीं पर 900 मीटर्स तक दीज आर हाई। और बेसिकली दीज आर having a lot of thick gravel as well as alluvium. Alluvium मतलब वो सॉइल जो कि रिवर्स के थ्रू कैरी आउट की जाती है फ्रॉम हायर रीचेस टू लोअर रीचेस ऑफ द माउंटेन्स। यहाँ पर नॉर्मली जो वैलीज हैं, बेसिकली द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, दे आर नोन एज दून्स। फॉर एग्जाम्पल देहरादून, कोटली दून, पटली दून, these are the valleys which are located in the Shivalik range. So look at this figure very carefully so that you can have a lot of name जो आपके पेपर में पूछे जा सकता है। फर्दर एक चीज और हुई थी, जब दिस प्लेट, दिस कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट, लेट्स से दिस इज यूरेशियन प्लेट, ईपी इज यूरेशियन प्लेट, दिस इज इंडियन प्लेट। तो जब ये इस डायरेक्शन मूव कर रहे थे तो थोड़ा सा पार्ट इसका ब्रेक होके अलग हो गया था इंडियन कॉन्टिनेंट से, मतलब पेनिनसुलर इंडिया का एक पार्ट थोड़ा सा अलग हो गया था और बीच में एक गैप जनरेट हो गया था। उस गैप को बोलते हैं मालदा गैप। मालदा गैप। और इस गैप के बाद जो इसके ईस्टवर्ड जो पार्ट है वो पार्ट आपका है शिलोंग प्लेटू का। तो अगर आपसे सवाल आता है शिलोंग प्लेटू किसका पार्ट है, तो शिलोंग प्लेटू टेक्निकली इज नॉट द पार्ट ऑफ नदर्न माउंटेन रेंज, इट इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया जो कि ब्रेक होके बन गया था। किस टाइम पे ब्रेक हुआ था, जबकि देयर वाज द कोलिजन और कन्वर्जेंस वाज हैपनिंग बिटवीन यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट, और जिस गैप से वो सेपरेट होते हैं दैट गैप इज नोन एज द मालदा फॉल्ट और मालदा गैप। ठीक है, आगे देखते हैं अरुणाचल हिमालयास। बेसिकली अरुणाचल में देयर आर सेवरल माउंटेन रेंजेस और माउंटेन सिस्टम विच इज द एक्सटेंशन ऑफ इंडियन हिमालयास। तो यहाँ पर यू कैन फाइंड several passes like Difu Pass. एक लोकेशन है अरुणाचल में नामचा बरवा which is the important mountain pass and it is this नामचा बरवा from which the Brahmaputra enters into India. ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो रिवर बोलते हैं एंड सांगपो रिवर फाइंड्स इट्स वे इंडिया में, कहां से, नामचा बरवा पास से। अदर ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स विच इंक्लूड द माउंटेन रेंजेस like that of Naga Hill,
Manipur hills, Mizo hills, Patkai Bum hills. These are the different hills which are present in the Purvanchal part of India. These are also known as Purvanchal hills. पूर्वांचल हिल्स और पूर्वांचल माउंटेन्स. फर्दर जब इंडिया एक्सटेंड हो रही थी, इंडिया जब कोलाइड कर रही थी, कन्वर्ज कर रही थी यूरेशियन प्लेट के साथ में, तो ड्यूरिंग दिस कन्वर्जेंस ये जो माउंटेन रेंज डेवलप हुई विच आर द पूर्वांचल हिल्स, फर्दर ये एक्सटेंड होते गए और यहाँ पर भी कुछ कॉन्टिनेंटल क्रिएशंस और आइलैंड क्रिएशन हुई जिसको आज हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नाम से जानते हैं. And this is the part or extension of Arakan Yoma range. Which is also present in Myanmar, Arakan Yoma. So this is about the northern Himalayas in India. Right now, let's just try to look at what this figure is telling us. All right. दिस इज इंडियन डेजर्ट, दिस इज द अरावली रेंज जो कि इंडियन मॉनसून के पैरेलल पड़ जाती है. यहाँ पर देर इज गिर रेंज जो कि सम रेनफॉल गुजरात के कोस्टल एरिया में करने में हेल्प करती है. दिस इज द विंध्या रेंज, दिस इज सतपुड़ा रेंज, दिस इज महादेव रेंज, दिस इज छोटा नागपुर प्लेटू इन इंडिया. Here it is Eastern Ghat. Eastern Ghat or Western Ghat, these are two ghats important for us. These are the coastal mountains. Western Ghat कैसे form हुए? Western Ghats are basically formed by the submergence of western part of India. जब इंडिया कोलाइड करा इंडिया ने with यूरेशियन प्लेट, तो कुछ पार्ट इंडिया का यहाँ था. With the jug and the collision of Indian plate and Eurasian plate, what happened? Some part of India got broken from Indian mainland और वो submerge हो गया. That is at present under the sea. तो कुछ पार्ट ब्रेक हो गया. तो अगर आप देखते हो वेस्टर्न घाट बेसिकली दीज आर दी माउंटेन एस्कार्पमेंट. इनकी सडन हाइट रेज होती है कहाँ से? फ्रॉम दी कोस्टल एरिया से, क्योंकि इसका पार्ट सबमर्ज हो चुका है. वेयर एज ईस्टर्न पार्ट में ऐसे कोई नहीं है. तो यहाँ पर लैंड से ओशन की तरफ अगर जो ट्रांजिशन है इट इज ग्रेजुअल ईस्टर्न घाट में. वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दीज आर ऑफ वेरी ओल्ड एज, यानी कि बहुत पहले बन चुके थे. दीज आर नॉट यंग फोल्ड माउंटेन्स लाइक हिमालयाज. इनमें डिफरेंस ये भी है कि ईस्टर्न घाट्स आर वेरी ओल्ड एज वेल एज ईस्टर्न घाट्स में जो आपके माउंटेन रेंज है दीज आर डिसकंटिन्यूअस. दीज रेंजेस आर नॉट कंटिन्यूअस. नोट डाउन दीज पॉइंट्स कि यहाँ पर माउंटेन रेंजेस आर डिसकंटिन्यूअस. मैक्सिमम रिवर्स अगर आप देखेंगे दे विल फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न डायरेक्शन में, राइट. आप इसमें ऑर्डर याद रखिए, विच इज नॉर्थ, विच इज साउथ, विच इज ईस्ट, व्हाट आर डिफरेंट रेंजेस हेयर. फर्दर यहाँ पर यू कैन फाइंड like Annamalai peak. So different locations, these are given here in this map. As we move further, we will also try to look into different locations on the different maps. Now here this is the map. एक बार फिर से देखते हैं. It is काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये तीनों क्या मिलकर बनाते हैं? ट्रांस हिमालय. देन ग्रेटर हिमालय जिसमें देन लेसर हिमालयाज में पीर पंजाल रेंज, फिर धौलाधार रेंज विच इज इंपॉर्टेंट, फिर शिवालिक इज देयर, जो शिवालिक नेपाल से भी पास होती है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट हिमालयाज इन अरुणाचल वी गेट दफला हिल्स, मिरे हिल्स, अबोर हिल्स, मिश्मी हिल्स. यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स: दफला, मिरी, अबोर, मिश्मी. देन यू हैव गॉट मेकिर, यू हैव गॉट पटकाईबम, देन आराकान योमा रेंज जिसका एक्सटेंशन हमने यहाँ पर देखा था अरेबियन सी में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. देन यू हैव गॉट बराइल रेंज, गारो, खासी, जैंतिया, ये किसका पार्ट है? पेनिनसुलर इंडिया का. हियर इट इज अरावली रेंज, यहाँ पर माउंट आबू है नियर गुजरात बॉर्डर. इट इज गिर रेंज, छोटी छोटी रेंज है यहाँ पर. मांडव हिल्स, गिरनार हिल, कच्छ हिल्स. आपको ये नाम याद रखना है. दिस इज द मैप विच इज टेलिंग यू डिफरेंट माउंटेन रेंजेस. देन वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट का डिफरेंट नेम. नदन सरकार आपका कहाँ कहलाता है? ये इन दी महाराष्ट्र पोर्शन.
वेस्टर्न घाट में एक छोटे से हिल पड़ता है बाबा बुदन हिल्स विच इज फेमस फॉर द कॉफी कल्टीवेशन. बाबा बुदन हिल्स कहाँ पर? कर्नाटका में. देन नीलगिरी. नीलगिरी इज द एरिया जो आपके तीन स्टेट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर है. कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. अन्नामलाई रेंज फर्दर साउथ में. अन्नाईमुडी इज द पीक. कार्डेमम इज अनदर रेंज जो आपके तमिलनाडु में पड़ती है. इट इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, राइट. अब वेस्टर्न घाट से कुछ एक्सटेंशन है जो आपको देखनी है. इट्स लाइक सतपुड़ा रेंज. सतपुड़ा रेंज के अंदर वी कैन सी गाविलगढ़, माउंट महादेव रेंज जिसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, मैकाल रेंज, आगे रामगढ़. जब आप विंध्या को देखते हो, विंध्या रेंज, विंध्या के नॉर्थ में कैमूर रेंज और मैलान हिल्स. आप फर्दर ईस्ट मूव करते हो, राजमहल हिल्स आपके वेस्ट बंगाल में. देन अयोध्या हिल्स, बादाम पहाड़ इज अनदर देयर. सतमाला रेंज आपके नॉर्थ ऑफ सतपुड़ा रेंज पड़ता है. एंड देन अजंता रेंज इज ऑल्सो देयर. हरिश्चंद्र रेंज, बालाघाट रेंज, ये सब आपके महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे. देन यू हैव गॉट डिफरेंट रेंजेस इन ईस्टर्न घाट्स लाइक गरजट हिल्स, बादाम हिल्स, आरोयाकोंडा is a peak here. Erramala, Nallamalai. These are the name. You need to mug up these names. जब आपकी बात करेंगे सदर्न इंडिया में, then Javadi is one range, Shevaroy is another, then Palani Hills. These are the part of Eastern Ghats. This particular piece of map gives you a lot of information. All you need to do is you need to sit and observe the information ताकि आप इसके बेसिस पर अपने आंसर को मार्क कर सको. Further, this map is talking about the various peaks. So some of the highest peaks are given here. आपको उन peaks के बारे में you need to mug up, you need to see. जैसे गुरु शिखर पर्वत या गुरु शिखर peak कहाँ पर है? नंगा पर्वत is here, which is important peak here. कंचनजंगा is here. धौलागिरी is here, which is in Nepal. Then नंदा देवी उत्तराखंड में, right? Shillong peak is there, Saramati peak is there, Blue Mountain is there. All you need to do is you need to go through the important peaks और आप उसको observe करने की कोशिश करो, because the last few days of your examination would require you to memorize some information which is factually oriented. Conceptual part आपका हो जाता है, then you have to supplement your knowledge with the factual information. These maps are giving you the factual information. Moving ahead, this is the map which is talking about the mountain passes. Mountain passes. These are commonly known as the low altitude areas in the mountain, जहां से people can cross the mountain. Mountain passes are the low altitude areas या फिर gap in the mountain जिसके through people can pass. Normally what happens, these are the mountain passes which are either created naturally कि वहां पर mountain range में ही एक depression है, या फिर these can be created by some rivers. तो river valley की वजह से भी वो created हो सकते हैं. Let's try to see what are different passes. Normally passes को इंडिया के केस में they are called as La when we talk about the northern mountain ranges. For example, within India, Kashmir में you can get the Burzul Pass, Zojila Pass, Khardungla. These are the passes in the Trans-Himalayan range. You have got the Pir Panjal Pass, Banihal Pass, जहाँ पर जवाहर टनल बनी है. There are several passes like Shipkala Pass, जो अभी controversial था कुछ टाइम पहले. Nathula Pass, Jalipla Pass, it was further controversial. So these are the different passes. What you can remember, there are several passes here. Just have a look at these passes. Now you can remember that Palghat is another pass, Borghat is another pass, Asirghat Pass, then Goran Ghat Pass and Haldighati Pass. These are the passes of peninsular India which can be referred here. So आप इस map को try to see and try to observe this map. What are different passes are there in Indian physical setting. Having seen the passes और pass को ला बोलते हैं, we can move further to see. This is a comprehensive map जो आपको इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है. सो इट इज टॉकिंग अबाउट इंडियन ड्रेनेज सिस्टम. एक है नदर्न इंडिया का जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है, विच लार्जली इन्वॉल्व्स
इसके नॉर्थ में जितनी रिवर है दे आर बीइंग द रिवर ऑफ हिमालयन. इसके साउथ में जितनी रिवर है, द ब्लू लाइन ड्रॉन हेयर, साउथ में जितनी रिवर है दे आर पेनिनसुलर रिवर. दिस मैप गिव्स यू नेम ऑफ लॉट्स ऑफ रिवर. तो फर्दर दिस इज रिक्वेस्टेड कि आप इस मैप को बार बार ऑब्जर्व करो, बिकॉज ऑब्जर्विंग दिस मैप विल हेल्प यू generate your understanding with the drainage system in India. तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर डिस्कशन, दैट इज द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. तो स्टार्ट विद नदर्न मोस्ट ड्रेनेज सिस्टम इज इंडस वैली सिस्टम. इंडस वैली में क्या खास है? सो बेसिकली इसे सिंधु से भी बोलते हैं. इट एमर्जेस नियर दी कैलाश रेंज एंड देन इट ट्रेवल्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में और लद्दाख एंड जस्कर रेंज के बीच में होती है. यानी कि ट्रांस हिमालय के लद्दाख एंड जस्कर रेंज के बीच में पास होती है इंडस रिवर, जहां पर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज लाइक शिलोक एंड गिलगिट दे मर्ज विद इंडस. फर्दर इट एंड्स इट्स जर्नी in the mountains at Attock and then it is joined by Kabul river from Afghanistan. Further it moves और बाकी आगे चलकर ये 5 रिवर से मिलती है. 5 रिवर इसमें आगे सबमर्ज हो जाती हैं. Their name is Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj. Finally it empties into the Arabian Sea and तिब्बत में इसका नाम सिंघी खम्बान भी है इंडस रिवर का. द लेंथ ऑफ इंडस रिवर इज 2900 किलोमीटर. तो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज दिस इंडस रिवर. इंडस रिवर इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, सो ऑल द वे इट इज फॉलोइंग दिस पाथ, राइट. सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज लाइक श्योक, गिलगिट दे एंटर हियर. इसके अलावा श्योक जो है, श्योक के साथ साथ नुब्रा भी इसमें आ जाती है. नुब्रा इज दिस. देन सम स्मॉल ट्रिब्यूटरीज are also there. Major tributaries like one is Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj और सतलज में जाके मिल जाते ब्यास. These are the tributaries of Indus. और इंडस में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आपको पाकिस्तान से भी और अफगानिस्तान से आती दिखाई पड़ेंगी. Some smaller tributaries like किशनगंगा is also there. ये ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी है एंड जहां पर ये सारी रिवर एक दूसरे से मिल जाती हैं दे आर नोन एज पंजड़. और ये पंजड़ जाके कहाँ मिलता है आपको? इंडस रिवर में इन पाकिस्तान. दिस इज अबाउट द सतलज रिवर. लेट्स सी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलज. वन ऑफ देम इज झेलम. सो झेलम वेरीनाग स्प्रिंग से जनरेट होती है. इट हैज गॉट ट्रिब्यूटरीज लाइक लिडार, सिंध, पोहरू और मुजफ्फराबाद में जाकर ये रिवर हेयरपिन बैंड से साउथवर्ड मूव कर जाती है और किशनगंगा इसे ज्वाइन करती है. कहां पर? मुजफ्फराबाद से. देयर आफ्टर ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री बनाती है 170 किलोमीटर्स लॉन्ग में. ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड फर्दर इट एमर्ज एट द पोटवार प्लेटू नियर मीरपुर और इसकी टोटल लेंथ है 724 किलोमीटर्स और चेनाब आके इसको ज्वाइन कर देती है. चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस. बारालापचा पास के पास ही ओरिजिनेट होती है लाहौल स्पीति के पार्ट में. अगर देखें तो लाहौल स्पीति पार्ट ऑफ जंस्कर रेंज. तो आपको यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन मिलती है, लाहौल स्पीति इज द पार्ट ऑफ जंस्कर रेंज. एंड फर्दर दिस ट्रिब्यूटरी एंटर्स इनटू द प्लेन एरिया नियर अखनूर इन जम्मू एंड कश्मीर और एक डीप गॉर्ज बनाती है किश्तवाड़ में. तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ सकती है कि पूछ सकते हैं कि रिवर का नाम देंगे और वो बोलेंगे इट क्रिएट्स अ डीप गॉर्ज इन किश्तवाड़. तो इफ इट इज झेलम then you know it is incorrect. If it is Chenab then you know it is correct answer. Further झेलम में आकर रवि मर्ज हो जाती है. Moving ahead, रवि की बात करें so it emerges near कुल्लू, रोहतांग पास के पास इन हिमाचल. एक धौलाधार रेंज में जो कि हिमाचल हिमालय का है वहां पर ये एक डीप गॉर्ज बनाती है. किसके पास? चंबा इन हिमाचल प्रदेश में. ये पंजाब एंटर करती है नियर माधोपुर में. ये फर्दर इट एंटर्स और इट मर्जेस विद चेनाब. कहां पर? पाकिस्तान में जाकर. देन अनदर ट्रिब्यूटरी इज ब्यास. ब्यास क्या करती है? रोहतांग पास के पास ओरिजिनेट होती है. रवि के पास ही ब्यास ओरिजिनेट हो रही है.
सो ब्यास इज ओरिजिनेटिंग नियर वेयर द रवि वॉज ओरिजिनेटिंग, तो रवि और ब्यास दोनों आसपास ही ओरिजिनेट होते हैं. फर्दर इट क्रिएट्स अ डीप गॉर्ज, अगेन धौलाधार रेंज से पास होते हुए. फर्दर इट मीट्स द सतलज रिवर एट हरिके, तो हरिके में जाकर ये सतलज रिवर से मिल जाती है ब्यास. दिस इज द पॉइंट जहां पर आपका हरिके है. एंड यू नो हरिके पे एक बैराज भी बना हुआ है, तो हरिके बैराज भी बना हुआ है. दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, जो पूरी तरह इंडिया में ही है. इसके बाद से ये जब एक बार मिल गई सतलज से, तो आगे जो रिवर होगी वो सतलज कहलाएगी, ना कि ब्यास. तो ब्यास इज द ओनली रिवर जो कि पूरे तरह से एक ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और ये इंडिया के अंदर ही इसका पूरा पाथ अपना लेकर, पूरा पाथ इसका कंज्यूम हो जाता है. मूविंग अहेड, द लास्ट मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस मानसरोवर से होती है राका लेक के पास, राइट. सो तिब्बतन रीजन से इट ओरिजिनेट्स. फर्दर इट इज जॉइंड बाय स्पीति रिवर नियर द शिपकिला. शिपकिला इट मीन्स शिपकी पास. तो शिपकिला पास के पास ये स्पीति रिवर के साथ ज्वाइन होती है. फर्दर इट एंटर्स द पंजाब प्लेन्स बाय हैविंग अ गॉर्ज नियर नैना देवी. नैना देवी पर एक गॉर्ज के थ्रू गॉर्ज बनाती. गॉर्ज मीन्स एक डीपर वैली बनाती है जिसके थ्रू ये पंजाब प्लेन में एंटर करती है. एंड फर्दर इट एंटर्स द प्लेन एट रूपनगर और रोपर इन पंजाब. इट इज जॉइंड बाय ब्यास एज वी नो एट हरिके. देन वी नो फर्दर it creates a boundary between India and Pakistan for nearly 120 kilometers. Further it joins the Indus, कहाँ पर? At Mithankot. So it joins the Indus at Mithankot. So this is about the tributaries of Indus river system. We are like moving or taking this session quickly because this is the factual information. क्योंकि आपके पास यहाँ more than understanding, you need to remember that you have to memorize this information. The map will be the real help for you in these sections. All right, moving ahead, we have got the Ganga river system. Ganga river system में you know गंगा की major tributary है यमुना. But before what is river गंगा, उससे पहले बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं, streams मिलती हैं. Then we get a river that is known as the गंगा. सो जहां जहां पर रिवर मिलती है उन पॉइंट ऑफ मीटिंग को, पॉइंट ऑफ मर्जिंग को हम बोलते हैं प्रयाग. गंगा बनने तक देयर आर 5 प्रयाग्स, पंच प्रयाग. वी नो यमुना इज मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर. गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर जनरेट होती है दैट इज भागीरथी. This river is traveling southwards. केदारनाथ से एक रिवर बनती है मंदाकिनी, it is also traveling. बद्रीनाथ से एक रिवर जनरेट होती है दैट इज अलकनंदा. अलकनंदा में एक छोटी रिवर आके मर्ज होती है दैट इज धौली गंगा. जिस पॉइंट पे मर्ज होती है इट इज विष्णु प्रयाग. सो नदर्न मोस्ट प्रयाग इज विष्णु प्रयाग. अलकनंदा में मर्ज होती है तो ये रिवर क्या कहलाती है? अलकनंदा ही रहती है. अलकनंदा में एक और रिवर आके मिलती है दैट इज नंदाकिनी. नंदाकिनी कहां मर्ज होती है? एट अ पॉइंट जिसको हम बोलते हैं नंद प्रयाग. तो विष्णु प्रयाग के बाद क्या आता है? नंद प्रयाग. हाईएस्ट इज दी ऑल्टीट्यूड वाइज विष्णु प्रयाग, देन नंद प्रयाग. नंद प्रयाग में क्या मिलती है? नंदाकिनी किससे मिलती है? अलकनंदा से. ये नाम आपको याद रखना, नंदाकिनी फ्रॉम अलकनंदा. फिर एक और रिवर की स्ट्रीम है दैट इज पिंडार गंगा. पिंडार गंगा आके मिलती है साउथ ऑफ नंद प्रयाग में, और इसका ये कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग में. पिंडार गंगा अलकनंदा से मिलती है एट कर्ण प्रयाग. फर्दर यहां से अलकनंदा जाके मिलती है आपकी मंदाकिनी से. तो अलकनंदा एंड मंदाकिनी इफ दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज रुद्रप्रयाग. एंड दिस रिवर फर्दर इज नोन एज दी, जो भागीरथी के साथ मिलने के बाद में बनती है, इट इज नोन एज दी गंगा फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड. और जो लोएस्ट प्रयाग है माउंटेन रेंजेस में, दैट इज नोन एज दी देवप्रयाग. सो देवप्रयाग इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एज वेल एज अलकनंदा रिवर. तो 2 मेन रिवर्स आर देयर, 2 मेन स्ट्रीम्स आर देयर जो मिलके गंगा बनाती है. वन इज भागीरथी, अनदर वन इज दी
अलकनंदा, राइट। और इट इज अलकनंदा जिसके अंदर बाकी सारे प्रयाग बनते हैं। तो विष्णु प्रयाग हाईएस्ट, फिर उसके बाद में नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग। किस पर बने ये सारे? अलकनंदा पर। और अलकनंदा और भागीरथी जहां ज्वाइन होती है दैट इज देवप्रयाग। उसके बाद इस रिवर का नाम पड़ जाता है गंगा, माइटी गंगा। ऑलराइट, तो गंगा के बारे में दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव टेकन। फर्दर जब गंगा आगे मूव करती है, राइट, तो इट मर्जेस विद अनदर ट्रिब्यूटरी दैट इज यमुना। यमुना से एक पॉइंट पे जाके मिलती है, और यमुना जिस पॉइंट पे मिलती है उसका नाम है आपका प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे, नाउ इट इज प्रयागराज। सो हाईएस्ट ऑफ ऑल द प्रयाग्स इज द प्रयागराज। गंगा में कुछ राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं एंड कुछ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। लाइक अगर राइट हैंड की बात करें तो यमुना रिवर और यमुना की सारी ट्रिब्यूटरीज लाइक चंबल, बनास, सिंध, बेतवा, केन, सोन, दामोदर, ये जो ट्रिब्यूटरी हैं दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। ये डायरेक्टली गंगा में जाकर एंटर कर रहे हैं, केन, सोन, दामोदर। सो वी कैन सी इट इज लाइक सोन, फर्दर हेयर केन, बेतवा, चंबल, एंड चंबल में बनास आके मिलती है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा इंक्लूड रामगंगा, गोमती, घाघरा, काली, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी। सो इट इज रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, राइट, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। फर्दर व्हाट यू कैन सी, गंगा में इस पॉइंट पर फरक्का से द गंगा रिवर गंगा इज बेसिकली ट्रेडिंग दिस पाथ, राइट। यहां तक ट्रिब्यूटरी आ रही है और इस पॉइंट से रिवर गंगा दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, एक हुगली और एक आपकी बांग्लादेश में जा रही है। जो ये फरक्का से रिवर निकलती है दैट इज नोन एज हुगली, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से पास होती है। इसमें एक और ट्रिब्यूटरी आके मर्ज होती है दैट इज दामोदर। दामोदर गंगा से यहां पर एक रिवर आके मिलती है, बहुत बड़ी रिवर आके मिलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, एंड फर्दर ये यहां पर मेघना कहलाती है, राइट। इसको हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र सिस्टम के साथ में। दिस इज अबाउट गंगा। आपको यहां से ये रिवर का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। जब हम ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, सो ब्रह्मपुत्र जो यारलॉन्ग सो कहलाती है तिब्बतन रीजन में, इट एंटर्स फ्रॉम नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, और इसमें एक ट्रिब्यूटरी आके मिलती है लोहित, सुबांसरी। फर्दर देयर आर ट्रिब्यूटरीज लाइक मानस, तीस्ता, एंड अल्टीमेटली इट मर्जेस विद गंगा, ब्रह्मपुत्र आसाम से होते हुए। सो दिस इज अबाउट द गंगा सिस्टम। ब्रह्मपुत्र को डिटेल में वील सी, one river is coming from this side, one river is coming from this side, and they are meeting in Bangladesh. तो गंगा के बारे में लेट्स ट्राई टू सी सेम सम ऑफ द मेजर सिटीज लाइक यमुना में आपको न्यू दिल्ली, देन इन यमुना इटसेल्फ वी विल गेट आगरा, यहाँ पर इलाहाबाद इज द सिटी, गंगा में कानपुर, एंड देयर आर सेवरल अदर सिटीज। लखनऊ गोमती से रिलेटेड है। जिस पॉइंट पे सोन मिलती है गंगा से दैट इज द पॉइंट नियर पटना। फरक्का इज अनदर पॉइंट, कोलकाता इज अनदर पॉइंट जहां पर हुगली मिलती है। दीज आर द मेजर सिटीज इन गंगा रिवर वैली। मूविंग अहेड, ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लाइक चेमायुंगडोंग इज द ग्लेशियर, जहां से कैलाश रेंज में जहां से एक रिवर स्टार्ट होती है जिसका नाम है सांगपंगयो। ये रिवर यारलांग सांगपो जो एमर्ज करती है दैट इज आफ्टर रिसीविंग वाटर फ्रॉम मेनी रिवर्स इट टर्न्स आउट टू बी ब्रह्मपुत्र रेंज इन इंडिया। ब्रह्मपुत्र कहाँ कहलाती है? व्हेन इट एंटर्स इनटू आसाम प्लेन्स। उससे पहले इसके नाम कई सारे हैं, वी विल सी देम। मरियमला यानी कि मरियम पास सेपरेट करती है ब्रह्मपुत्र के सोर्स को मानसरोवर लेक से, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। द लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र इज 2900 किलोमीटर्स। Sangpo means purifier is the name of this river in the Tibetan region. नामचा बरवा के पास ये एक डीप गॉर्ज क्रिएट करती है, एक डीप वैली क्रिएट करती है जिससे ये पास होती है। फिर इसका नाम जब ये नामचा बरवा से अरुणाचल हिमालयाज में एंटर करती है, इसका नाम सियांग रिवर या दिहांग के नाम से जाना जाता है। फर्दर
दिबांग एक ट्रिब्यूटरी जो इसके साथ जुड़ती है, एंड देन लोहित इज अनदर ट्रिब्यूटरी। उसके बाद से इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं इन आसाम रिवर। आसाम में इट क्रिएट्स अ ब्रेडेड चैनल। अब ब्रेडेड चैनल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब रिवर प्लेन में आ जाती है तो इट लूजेज अ लॉट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो उसका मोशन बहुत स्लो हो जाता है। स्लो हो जाने की वजह से जो सेडिमेंट है, सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है वहां पर वैली में। बिकॉज ऑफ दैट सेडिमेंट डिपॉजिशन रिवर में बहुत सारे बीच में आइलैंड बन जाते हैं, तो इट क्रिएट्स अ ब्रेड इन द पाथ ऑफ रिवर। सो दिस इज द रिवर। तो बीच बीच में आपके बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, दीज आर दी ब्रेड्स। तो रिवर का वाटर फ्लो करेगा ब्रेडेड चैनल से। सो इट इज ब्रेडेड रिवर। इट इज among the 4 largest river in the world in terms of volume of water. आपको you can imagine कि highest width इसकी it may extend up to 9 to 12 kilometers in the Assam plain regions. तीस्ता एक tributary है which joins गंगा as well as मजुली, एक आइलैंड है, रिवरीन आइलैंड, जो ब्रह्मपुत्र में है, विच इज द लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड इन द वर्ल्ड, जिसका एरिया है 1200 स्क्वायर किलोमीटर्स। दिस इज लोकेटेड इन आसाम रीजन। फर्दर नेशनल वाटरवे 2 फ्रॉम सदिया टू डुबरी इज इन दिस रिवर, दिस माइटी रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र। मूविंग अहेड, ब्रह्मपुत्र के बारे में वी हैव सीन दिस कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज आते हैं, लोहित आके मिलती है, एंड देन यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इट मूव्स फॉरवर्ड एंड फर्दर तीस्ता रिवर जो सिक्किम से होती हुई इस रूट पर आती है, इट मर्जेस विद ब्रह्मपुत्र, राइट, एंड देन अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्र एंड गंगा दे मर्ज विद ईच अदर इन बांग्लादेश। अब नाम देखते हैं ब्रह्मपुत्र के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। तिब्बत में सांगपो, चाइना में यारलंग जांगपो रिवर, आसाम वैली में दिहांग सियांग रिवर, बांग्लादेश में इट इज नोन एज जमुना जब एंटर करती है बिफोर इट बिकम्स दी मेघना, गंगा के ज्वाइन करने के बाद में पद्मा व्हेन इट गेट्स कंबाइंड विद गंगा और यमुना जब ये कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में, देन इट इज नोन एज दी पद्मा रिवर इन बांग्लादेश। फर्दर इट इज नोन एज मेघना जब पद्मा और मेघना का कॉन्फ्लुएंस हो जाता है, इट इज नोन एज दी मेघना रिवर। तो ये सारे नाम है डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस रिवर, आपको याद रखने हैं with respect to your prelims. Now you can see this is very much clear map जो आपको कई सारी रिवर के नाम बताएगा। तीस्ता इज वन जो इससे मर्ज हो रही ब्रह्मपुत्र से, देन शंकोश इज अनदर ट्रिब्यूटरी, देन मानस इज अनदर ट्रिब्यूटरी, मानस के नाम से आपके पास बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहाँ पे, देन बर नदी इज अनदर, देन Bharali is another river, Subanshri is another major river, Siang is another river, Dibang is major tributary, then Lohit, then Bodi Dihing, then Dikhau river, then Dhanchari, then Kopili, further Kolong. These are the major rivers. आप इनके नाम को याद रख सकते हैं, which are right bank tributary, which are left bank tributary. It is going to help you in the factual part of your examination. Now rivers of peninsular India. This is the short and summarized table which I have given you. Major rivers include Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, Narmada, Tapti. Basically इनका source भी है. For example, Mahanadi in Dandakaranya near Raipur. So it is from Chhattisgarh. Godavari का है it's Triambak Plateau near Nashik in Maharashtra. Krishna near Mahabaleshwar in Maharashtra. Kaveri in Tal Kaveri in Western Ghats. अमरकंटक प्लेटू नर्मदा का, मुल्ताई टैंक इन बेतुल डिस्ट्रिक्ट किसका है, ताप्ती का। इनकी लेंथ है आपके पास गिवन। सो द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर इज रिवर गोदावरी, राइट। एरिया भी इनका गिवन है, दिस इज द एवरेज वॉल्यूम विच इज ऑफ आर लीस्ट कंसर्न। फिर कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम है विच विल सी वन बाय वन। दिस टेबल इज गोइंग टू हेल्प यू जब आपको पेपर देना हो, पेपर से 2-3 दिन पहले, इफ यू आर रिवाइजिंग दिस टेबल इज गोइंग टू हेल्प यू कि आप इस टेबल के थ्रू यू कैन रिवाइज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी रिवाइज थ्रू दिस टेबल। तो आपको इस टेबल को यूटिलाइज करना है अलॉन्ग विद द मैप टू ऑब्जर्व द रिवर्स। नाउ देयर इज 2 different aspects to understanding.
So this is the conceptual portion that may be required here. So let's discuss this conceptual part. When we talk about India, so India physically, if you'll see, if this is the cross section of India, India के map में we are taking this cross section x and x dash. So this is the western part of India, x. This is the eastern part of India, x dash. So you will see normally there is this gradient in terms of height. These are the western घाट्स और यहाँ पर आपके ईस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न घाट्स में बहुत सारे गैप्स हैं. तो जो भी इंडिया में रिवर जनरेट होते हैं यहाँ पर, दे विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. दे आर दी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. बाकी जो छोटी छोटी रिवर है, कुछ रिवर्स फ्लो होती हैं, दे आर वेस्ट फ्लोइंग. कुछ रिवर जो आपके अरावली रेंज है उससे फ्लो होती हैं, तो दे गो इन दिस डायरेक्शन, गंगा के साथ या यमुना के साथ मर्ज हो जाती हैं. कुछ रिवर आपके वेस्ट डायरेक्शन में आती हैं जो कि इनलैंड ही लॉस्ट हो जाती हैं, जिसका एग्जांपल है, एक मेजर एग्जांपल है लूनी रिवर, जो आपके कच्छ रीजन में जाके इट गेट लॉस्ट इन द कच्छ रीजन. So let's talk about east flowing rivers. One of the major east flowing river is the Mahanadi. Source is Dandakaranya near Raipur district. Basically its upper course lies in the saucer shaped basin, जिसको हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ प्लेन. हीराकुड डैम इस रिवर पे बना है. दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन फॉर दिस रिवर. नेक्स्ट इज दी गोदावरी रिवर. दिस इज द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. इसको वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं. इट कवर्स 10% एरिया ऑफ इंडिया, जो इसका कैचमेंट एरिया है. तो ये महाराष्ट्र, आंध्रा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटका, इन एरिया से पास होती है. त्रिम्बक प्लेटू से इन नॉर्थ सह्याद्री रेंज इन नासिक ऑफ महाराष्ट्र it emerges and ultimately it flows towards the Bay of Bengal. कृष्णा रिवर, सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से बे ऑफ बंगाल में जाती है. ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये. इट हैज गॉट मेजर ट्रिब्यूटरीज लाइक कोयना, तुंगभद्र, भीम आर दी मेजर ट्रिब्यूटरीज. कोयना डैम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इस रिवर में, टू हैव दिस इंफॉर्मेशन. फर्दर साउथ चलते हैं, वी गेट दी दक्षिण गंगा, that is Ganga of South. It is the Kaveri. So Kaveri basically ब्रह्मगिरी रेंज से जनरेट होती है फ्रॉम ताल कावेरी, इसका सोर्स है. और देन इट रिसीव्स मेन वाटर फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून एंड फर्दर इट मूव्स और फ्लोज टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल रीजन. दिस इज अबाउट द कावेरी रिवर. मूविंग अहेड, सुब्रन रेखा is another river which is originating in Jharkhand in Ranchi Plateau. Basically it creates a boundary between West Bengal and Odisha in lower course और इसकी लेंथ केवल 395 किलोमीटर है. Another river is Brahmani which is formed at the confluence of Koel river and sunk in Odisha near Raurkela. इसकी लेंथ 800 किलोमीटर है. इसकी मेन ट्रिब्यूटरी आर कूरा, संकर एंड टीकरा. दीज आर दी मेजर ट्रिब्यूटरीज. एक और छोटी रिवर है ईस्ट फ्लोइंग रिवर which is basically emerging from the spring at Nandi Durg peak in Karnataka. इसकी लेंथ 597 किलोमीटर है और बेसिकली इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज दीज आर गिवन हेयर. इट इज जयमंगली, कुंदेरू, चित्रवरी, पापगनी एंड चेयूरू. दीज आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ पनेरू रिवर. देन कम्स दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर. वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में आई हैव टोल्ड यू कि वेस्टर्न घाट से छोटी छोटी रिवर्स जनरेट होती हैं, बट देयर आर 2 exceptions to it. One is the Narmada and another one is the Tapi, because these are the rivers which are flowing in the Rift Valley. Rift Valley का concept you can remember Block Mountain से. Block Mountain से Rift Valley का concept emerge होता है. So here what we can see, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है बेसिकली. नर्मदा अमरकंटक प्लेटू मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है. इट फ्लोज थ्रू द वैली विच इज क्रिएटेड बिटवीन द विंध्या रेंज इन द नॉर्थ एंड सतपुड़ा रेंज इन द साउथ. तो विंध्या रेंज
और सतपुड़ा रेंज के बीच में जो वैली बनी है वहां से कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? नर्मदा। कहाँ जाके मर्ज होती है? बिकॉज इट इज वेस्ट फ्लोइंग, तो जाके मर्ज होगी अरेबियन सी में। धौधार फॉल्स, दैट इज क्लाउड्स ऑफ मिस्ट, ये नर्मदा रिवर बनाती है इन जबलपुर, और बेसिकली इट क्रिएट्स द एस्चुरी इन द अरेबियन सी। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज द मेजर प्रोजेक्ट जो इस रिवर पे कंस्ट्रक्ट हुआ है। देन कम्स द तापी। तापी इज द सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द कंट्री। दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द ट्विन जो कि वेस्ट फ्लो करती है, तो दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ट्विन ऑफ द नर्मदा। मुल्ताई टैंक इज द सोर्स ऑफ तापी in Betul district of Madhya Pradesh. Then comes the Sabarmati. Sabarmati is 320 kilometers long river. Basically, it is combined by two rivers, Sabar and Hatmati. इनको combine करने के बाद में, where from this river originate? It originates from the hills of Mewad in Aravalli range, and these are the some tributaries of Sabarmati. Mahi is another river जो विंध्या रेंज से जनरेट होती है, एंड गल्फ ऑफ खंबात में जाके it has its mouth. Then comes Luni river. इसका नाम salt river भी है. It is generating in the Aravalli range near the Ajmer in Aravallis, and ultimately it gets lost in the run of Kutch. This is one of the inland river system जिसको आप एक ocean में जाकर, it does not empty its water in any ocean. It empties its water in Gulf of Kutch. We have seen there are two types of rivers. One is the northern rivers in the Himalayan region. Another one is the peninsular rivers in the peninsular India. Peninsular India में we have seen there are different sources of rivers. कुछ sources आपके वेस्टर्न घाट में है, कुछ sources आपके सेंट्रल इंडिया में है। जैसे छत्तीसगढ़ में कुछ sources हैं, या फिर मध्य प्रदेश में है। नर्मदा तापी उसमें से एक एग्जाम्पल है। कुछ रिवर ईस्ट फ्लो करते हैं, कुछ रिवर वेस्ट फ्लो करते हैं, कुछ रिवर का सोर्स आपको अरावली में मिलता है। अरावली से दोनों डायरेक्शन में रिवर डाइवर्ट होती हैं, वेस्टर्न साइड में जाकर भी और साउथ वेस्ट में भी जाकर, और कुछ रिवर ईस्ट की तरफ भी फ्लो करती हैं। सो दिस टेबल ट्राइज टू गिव यू द डिफरेंशिएशन बिटवीन पेनिनसुलर एंड हिमालयन रिवर। सो पेनिनसुलर रिवर और हिमालयन रिवर में डिफरेंस क्या है कि ये हिमालयन ग्लेशियर से बनती है। दीज आर बेसिकली पेनिनसुलर प्लेटू या सेंट्रल हाईलैंड जो कि आपके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रीजन के आसपास है, वहां से ओरिजिनेट होती हैं। दीज रिवर्स आर पेरिनियल, पूरे साल भर होते हैं। दीज रिवर्स आर सीजनल, कि अगर रेन फेड है, रेन से डिफरेंट ट्रिब्यूटरी से, बड़े कैचमेंट एरिया से जो पानी आके इकट्ठा होता है वो पेनिनसुलर रिवर में ऐड होता है। दीज रिवर्स आर एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट मीन्स दीज आर बेसिकली जो लैंडफॉर्म जनरेट हो रहा है उसके साथ साथ दीज रिवर हैव बीन फॉर्म्ड, और उस लैंडफॉर्म में दे हैव क्रिएटेड द न्यू पैटर्न्स। फर्दर दीज रिवर्स आर सुपर इम्पोज्ड, दीज आर रेजुविनेटेड। रेजुविनेटेड मतलब जो रिवर अपने एनर्जी को लूज कर चुके हैं, बट ड्यू टू चेंज इन सी लेवल उनके वापस से उनके फ्लो और डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है। दीज आर दी रेजुविनेटेड रिवर्स। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेलिस, रेडियस एंड रेक्टेंगुलर, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया में जो रॉक है, रॉक्स आर स्ट्रॉन्ग, दीज रॉक्स आर रेजिस्टेंट रॉक्स। इसकी वजह से जो रॉक जहां पाथ देते हैं उसी पाथ पे रिवर फ्लो करती है। नॉर्मली बिकॉज ऑफ दिस वी गेट दिस पैटर्न ऑफ रिवर फ्लो इन पेनिनसुलर इंडिया। बेसिन्स, हिमालयन रिवर की बेसिन्स बड़ी होती हैं एंड कंपैरेटिवली पेनिनसुलर इंडिया की बेसिन छोटी होती है। डेप्थ ऑफ वैलीज, डीपर वैलीज आपको मिलेगी यहाँ पर। पेनिनसुलर केस में वैलीज आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं मिलेगी, रिवर भी बहुत ज़्यादा डीप नहीं मिलेगी। फ्लो ऑफ वाटर की वजह से बहुत इरोजन होता है and water is very high in terms of its volume, whereas less erosion is possible in case of peninsular India. Further water volume भी कम है क्योंकि इसका सोर्स भी कांस्टेंट नहीं है। इरिगेशन केवल नदर्न प्लेन को, ये केवल लार्जली पेनिनसुलर इंडिया को इरिगेट करते हैं। अगर स्टेज देखी जाए रिवर की तो दीज आर इन दी यंग एंड एक्टिव स्टेज, और जो पेनिनसुलर इंडिया है दीज आर इन दी ओल्ड स्टेज, क्योंकि इनमें पानी का फ्लो कम है, दे हैव लेस काइनेटिक एनर्जी, तो पानी का मोशन इज वेरी स्लो इन दीज रिवर्स। देन कम्स, दिस इज द लिस्ट ऑफ सर्टन मेजर रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, जो आपको इट विल हेल्प यू गैदर इंफॉर्मेशन और organize your information. So I would urge you to go through this table and try to
मेक इन योर शॉर्ट नोट्स, ताकि आप उसे पेपर के एक दिन पहले भी रिवाइज कर सको. Just before winding up the session on drainage system and physical settings of India, I would like to show one map of India जो आप utilize कर सकते हो in terms of different rivers. So here you can see these are the rivers, और इनमें there are tributaries, different tributaries and locations are mentioned. आप इनको observe करो. गोदावरी, दुधवा, पूर्णा, पेनगंगा, मनार, ये कहाँ किससे मर्ज कर रही हैं. दिस एक्सरसाइज विल टेल यू कि आपको रिवर का मैप पर रिवर की ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगी. यू कैन सी कि कौन सी रिवर कहाँ पर एग्जिस्ट करती है. तुंगभद्र, भद्र, पेलूरू रिवर, राइट. कृष्णा, दिस इज द पाथ ऑफ कृष्णा, जिसमें different rivers are merging. So I would urge you that observe this map for your better information concentration. जैसे लूनी की बात की थी हमने. So लूनी is the river जो आपके अरावली से जनरेट होती है एंड रन ऑफ कच्छ में जाके लॉस्ट हो जाती है. साबरमती एक रिवर यहाँ पर है, माही रिवर यहाँ पर है, नर्मदा दिस इज द पाथ ऑफ नर्मदा, राइट. तापी का पाथ यहाँ पर है, मुल्ताई टैंक के आसपास होती जनरेट. गोदावरी इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाथ, बाकी सारी इसमें ट्रिब्यूटरीज हैं. महानदी इज हैविंग दिस पाथ, राइट. तो आपको जरूरत है इस मैप को ऑब्जर्व करने की. टेक वन रिवर एट अ टाइम और इस रिवर के ऊपर काम करो. स्पेंड 10 minutes ऑन ईच रिवर, ऑब्जर्व इट सो दैट यू कैन गेट टुवर्ड्स द लॉजिकल कंक्लूजन. ऑलराइट, सो विद दिस वी आर डन विद आवर session on physical settings of India as well as the drainage systems of India. Thank you very much.